So good afternoon, everybody. I am Manisha Saxena. I am ex officio secretary of the Admut Cadre IS Association, which represents the IS officers of UT Cadre. UT Cadre के IS officers ज़्यादातर दिल्ली में posted हैं और मैं UT Cadre IS Association की ex officio secretary हूँ, being the divisional commissioner. And I would request other colleagues of mine to introduce themselves. I am Dr. Jaydev Sarangi. I am an executive member of the Admut Cadre Association. I am Amjad Taz. I am DM South Delhi and Joint Secretary Admut Cadre IS Association. I am Nidhi Srivastava. I am Treasurer Admut Cadre IS Association. I am Varsha Joshi, Commissioner Transport. So first of all, I would like to tell all of you कि ये आज जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ये बहुत ही अनयूजुअल है. IS ऑफिसर्स यूजुअली नेमलेस फेसलेस ब्यूरोक्रेट्स होते हैं एंड दैट इज हाउ वी वर्क. वी वर्क completely out of the public eye. We do our own work, but this is a situation, and normally we work like that, but this is not a normal situation. We are in a totally abnormal situation where we have been targeted, we have been victimized, and a lot of misinformation is being spread about us, that we are striking work, we are working on somebody's behest. So we are here to clarify our stance. First of all, I would like to inform all of you, we are not on strike. The misinformation which is being spread that Admut Cadre IS officers are on strike in Delhi is completely false, baseless and malicious. We are all at work, we are in our offices. हम सारी मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, हम जितने पब्लिक इंस्पेक्शंस हैं वो कर रहे हैं, जितना काम जिस मौसम में जैसा जैसा जिस विभाग का होता है हर विभाग अपना काम कर रहा है और कोई भी ऑफिसर ऐसा नहीं है जो कि स्ट्राइक पर हो या काम स्लो करने के लिए बैठा हो. एवरीबडी इज वर्किंग टू देयर अटमोस्ट सिंसियरिटी विद अटमोस्ट विगर, अटमोस्ट डेडिकेशन. In fact, we are sometimes working even on holidays. So to say that we are on strike is completely wrong. That is the first point I want to make today. Secondly, I also want to bring to your notice that we are completely apolitical, we are neutral. पूरे देश में IS ऑफिसर्स ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा हैं, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन IS ऑफिसर्स हर सरकार के साथ, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेट करती हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, वो उनके साथ उतने ही डेडिकेशन से काम करते हैं, उनकी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं. So even in Delhi, whether it is any government, any political party, we have been working with utmost dedication, and we have never ever been required to come out in the open like this and clarify our stand. But in today's abnormal circumstances, this is what we have been forced to do, and therefore once again I would say कि ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये हमारे लिए भी बहुत अनयूजुअल है. हमने इस तरह से कभी भी नहीं सोचा था नौकरी ज्वाइन करते वक्त कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना स्टैंड इस तरह क्लैरिफाई करना पड़ेगा, लेकिन हम कम्प्लीटली न्यूट्रल हैं. हमारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई वास्ता नहीं है, हम सिर्फ कानून और संविधान के हिसाब से काम करते हैं. वी आर आंसरेबल ओनली टू द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड एज सिविल सर्वेंट्स इट इज आवर ड्यूटी that whenever the political executive is asking us to do something wrong, we bring to their notice that this is not as per the constitution. Delhi की जो constitutional scheme है, it is very different from the rest of the country. Delhi has a very unique position. It is something on which we have no control. We are required to work as per the constitutional scheme of things. So that we are doing with utmost dedication, utmost sincerity. That is all I want to say. Some specific circumstances have been brought out in the media in the last few days. We would like to clarify those, and we would like to just clarify the position on that. पहले क्लैरिफाई कर देते हैं, इसके बाद एक्चुअली डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ द राशन सर्विसेज के बारे में काफ़ी ह्यू एंड क्राई किया जाता है.
कि IAS ऑफिसर्स इसको ब्लॉक करके रखे हुए फाइल में कुछ कार्रवाई नहीं करते। 20 मार्च से ये फाइल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के यहाँ से नीचे आया था मुख्यमंत्री जी के पास, वो फाइल फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट में पहुंची ही नहीं है। तो IAS अफसरों की इस फाइल को रोकने में कोई भी रोल नहीं है। और इसके बारे में हमने अपने फूड एंड सप्लाई कमिश्नर को पूछा था, उसमें ये बताया गया और प्रेस रिलीज में भी हमने डिटेल दिया हुआ है। जी, जैसा कि डीसिल्टिंग ऑफ ड्रेन्स के बारे में कहा जा रहा है जी, कुछ बातें कही गई हैं कि IAS ऑफिसर्स की सो कॉल्ड स्ट्राइक की वजह से डीसिल्टिंग ऑफ ड्रेन्स में काम शुरू नहीं हो पाया है या फ्लड रिलीफ मेजर्स नहीं किए जा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमने खुद रेवेन्यू डिपार्टमेंट से एक फाइल मूव की, जो एक एनुअल रिव्यू ऑफ फ्लड कंट्रोल मेजर्स की मीटिंग होती है, जिसमें कि वे फ्लड कंट्रोल ऑर्डर जारी किया जाता है। हमने ये फाइल CM साहब को मूव की, मेरे से मूव हुई है रेवेन्यू सेक्रेटरी से, चीफ सेक्रेटरी साहब और रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से होते हुए चीफ मिनिस्टर साहब को गई है। और हमने उसमें चीफ मिनिस्टर साहब से खुद मीटिंग की डेट मांगी है जिस दिन फ्लड कंट्रोल ऑर्डर जारी किया जाएगा और रिव्यू ऑफ फ्लड कंट्रोल मेजर्स किया जाएगा। और चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत काइंडली इसके लिए 25 जून का वक्त दिया है, शाम को ये मीटिंग होगी। इसका मीटिंग नोटिस भी 8 जून को इशू कर दिया गया है। और इसमें जो पहला एजेंडा आइटम है वो रिव्यू ऑफ डीसिल्टिंग ऑफ ड्रेन्स बाय इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल, PWD, 3 MCDs, दिल्ली जल बोर्ड, NDMC एंड DDA, ये इसका पहला आइटम है। इसके अलावा भी डीसिल्टिंग का काम शुरू हो चुका है और इसको चेक करने के लिए भी डिस्ट्रिक्ट DMs को निर्देश दिए जा चुके हैं कि जो अपने फील्ड रेवेन्यू स्टाफ द्वारा ये चेक करवाएंगे कि डीसिल्टिंग ऑफ ड्रेन्स की प्रोग्रेस क्या है और ये रेगुलर रिपोर्ट्स इस बारे में हमें देंगे। तो इस तरह की कोई भी बात नहीं है कि डीसिल्टिंग ऑफ ड्रेन्स शुरू नहीं हो पाई है। ये बिल्कुल गलत और भ्रामक जानकारी दी गई है। मैडम, एक चीज ये भी कही जा रही है कि मैं कमिश्नर ट्रांसपोर्ट दिल्ली सरकार में हूँ और मैं यहाँ इसलिए आई हूँ, मुझे आने को मजबूर किया गया है क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ही विशेष पर्सनल अटैक किया जा रहा है। दी ऑफिशियल हैंडल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी हैज गॉन आउट ऑफ इट्स वे टू पुट फॉल्स एलिगेशंस ऑन मी एंड दिस इज extremely damaging to my personal reputation as an officer. It is damaging to the morale of all officers in Delhi who have been working diligently. ये एलिज किया जा रहा है कि एक हाईकोर्ट के केस में एफिडेविट नहीं फाइल कर पाया गया क्योंकि ऑनरेबल मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट ने मुझे फोन किया था मोबाइल पे और मैंने फोन लेने से इनकार कर दिया और मैंने उसके बाद एफिडेविट नहीं फाइल हो पाई। इस बारे में डिटेल कमेंट्स मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, आपको मैंने दिया भी है। यू मे लाइक टू गो थ्रू द डॉक्यूमेंट्स। मैं ब्रीफली बताना भी चाहूंगी इसमें क्या फैक्ट्स हैं और मैं ये बता सकती हूँ कि डिपार्टमेंट के अंदर की बात इस प्रकार से पब्लिक डोमेन में लाना, इट इज नॉट एट ऑल अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस फॉर अस। इट इज हाईली रिग्रेटेबल दैट वी आर बीइंग कंपेल्ड टू डू दिस। 30 मई 2018 को एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल ने एक ईमेल भेजा कि बस परचेज के केस में, इट इज कॉल्ड निपुण मल्होत्रा के नाम से वो केस है, कि बसेस के केस में एक एफिडेविट फाइल किया जाए। सम इन्फॉर्मेशन वाज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ एन एफिडेविट। द हाई कोर्ट हैड डायरेक्टेड अस टू डू दिस बाय 1 जून। मतलब कि 30 तारीख को मेल मिला है और 1 जून को हमें एफिडेविट फाइल करनी थी। तो हमने तुरंत ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में फाइल तैयार करके 31 तारीख को सुबह 11 बजे मेरे ऑफिस से वो कंप्लीट फाइल जिसमें पूरे फैक्ट्स थे और हमें क्या डायरेक्शन, पॉलिसी डायरेक्शन उससे रिक्वायर्ड थे ऑनरेबल मिनिस्टर से, हमने फाइल भेज दी। मेरे यहाँ से डिस्पैच राइटर निकल के सेक्रेटेरिएट में ऑनरेबल मिनिस्टर के ऑफिस में पहुंचे 11:30 बजे तक। जब वो वहां पहुंचे तो हमें बताया गया कि Minister is not in station, it is not known where he is, and the office shall not receive that file. तो वो फाइल जो है जिसके बारे में एफिडेविट अगले दिन फाइल करनी थी, हमें इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, हमें इमीडिएटली डायरेक्शन चाहिए थी।
11:30 बजे से डिस्पैच राइडर शाम के 8 बजे तक मंत्री जी के ऑफिस में खड़ा रहा। वो फाइल वहां रिसीव नहीं हुई। प्लस मेरे स्पेशल कमिश्नर ने तुरंत जो फाइल नोटिंग थी ऑनरेबल मिनिस्टर के व्हाट्सएप पे भेजा। व्हाट्सएप पे ब्लू टिक आ भी गया, उन्होंने वो नोट देखा भी, लेकिन ना उन्होंने हमसे बात करी, ना उन्होंने कोई रिस्पॉन्स दिया और ना हमें कोई डायरेक्शन मिला। Therefore, for the department it was a complete crisis situation कि हमें ऊपर से कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, कोई कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है, तो हम कोर्ट को क्या मुंह दिखाएंगे अगले दिन? बिकॉज ये सिर्फ मेरे पर्सनली या मेरे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मेरी बात नहीं, पूरे दिल्ली सरकार की बात है। That are we not able to give our views, give our submissions in front of the court? तो पूरा दिन निकल गया, हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो मजबूरन अगले दिन सुबह, जबकि मुझे कोई पर्सनल अपीयरेंस नहीं था, अदरवाइज रेगुलरली द काउंसिल वुड हैव हैंडल्ड द केस, लेकिन मुझे खुद कोर्ट में जाना पड़ा। उस दिन 10 बजे से 2 बजे तक आई वाज स्टैंडिंग इन द कोर्ट। Whatever queries were put to me by the Honorable Court, I responded, and Court was satisfied enough and passed orders accordingly. So, saying that because of us, the affidavit was not filed, आप खुद बताइए, is this anywhere near the fact? ये सारी चीजें मैं जो बता रही हूँ डॉक्यूमेंटेड है, क्योंकि एक फाइल मूवमेंट की सिस्टम होती है ऑनलाइन जिसमें सारा डेटा होता है। व्हाट्सएप मैसेज जो रिसीव हुआ है हमारे पास है। एंड अगेन आई रिपीट कि आप भी जानते हैं नेटवर्क कैसा है दिल्ली में। अगर किसी ने मुझे कभी कॉल किया भी है मेरे मोबाइल पे, आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी सच कॉल, अदरवाइज आई वुड हैव डन समथिंग। इट इज जस्ट नॉट ट्रू कि हम मीटिंग्स नहीं अटेंड कर रहे हैं, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट की दुनिया भर की मीटिंग्स में हम गए हैं, हर लेजिस्लेटिव ब्रीफिंग हम अटेंड करते हैं। वो खुद एक बार हमारे ऑफिस में आके एक मीटिंग ले चुके हैं। वी आर वेरी मच पार्ट ऑफ दैट मीटिंग। In every way, we are cooperating with all the policy directions from the government. So, just because there is some political means, some political end to be achieved, please don't use us. We are officers. We are here just to work. हमें आप political चीजों के लिए please हमें मत utilize करिए. Let us do our work. I am sure there are other constitutional means for achieving political ends. Please use them. Because we are feeling frightened and victimized. आप बताइए मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? ये सारी बात, it was designed to make it look that I did not receive a call and this did not happen. Because we normally do not like to talk about what has transpired on the files in public. It is just not done for us. But we are now being compelled to do this because we are being victimized and pushed for purely political ends which have absolutely nothing to do with us. Thank you. इस बारे में और भी ये क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि जितनी भी मीटिंग्स हैं, जो स्टैट्यूटरी मीटिंग्स हैं, जो कैबिनेट मीटिंग्स हैं, असेंबली कमेटी की जो मीटिंग्स होती हैं, उसके अलावा असेंबली सेशंस 2 बार हुए, उनमें काफी लंबा भी चला एक सेशन। तो असेंबली क्वेश्चंस की ब्रीफिंग्स के लिए सभी सेक्रेटरीज ने, सभी ऑफिसर्स ने मिनिस्टर्स के पास मीटिंग अटेंड की, उनसे बातचीत की, उनको हेल्प किया क्वेश्चंस के आंसर्स फाइनलाइज करने में। इसके अलावा जो ESC मीटिंग्स हैं, बजट मीटिंग्स हैं, हमने सब मीटिंग्स अटेंड की हैं और इस तरह की कोई भी बात नहीं है कि हम स्ट्राइक पर हैं। हाँ, चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ जो 19-20 फरवरी की रात में हादसा हुआ, उसके बाद हम सब भयभीत हैं। वी आर वेरी शॉक्ड एंड वी आर स्केयर्ड कि इफ दिस कैन हैपन टू द हेड ऑफ द ब्यूरोक्रेसी इन द स्टेट, देन हु इज सेफ? एंड दिस इज नॉट जस्ट अ थिंग अबाउट IAS ऑफिसर्स। ये सिर्फ IAS ऑफिसर्स की बात नहीं है, ये मुद्दा हर गवर्नमेंट सर्वेंट का है। अगर चीफ सेक्रेटरी रात को 12 बजे मीटिंग अटेंड करने गए तो ये तो कोई नॉन कोऑपरेशन की निशानी नहीं है। रात के 12 बजे मीटिंग अटेंड करने गए क्योंकि वो कोऑपरेट करना चाहते थे, वरना कोई ऑफिस आवर्स नहीं थे वो। लेकिन जो उनके साथ हुआ, क्या वो फील्ड में किसी भी और अधिकारी, किसी और कर्मचारी के साथ नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। और इसीलिए ये अक्रॉस सर्विस लाइन सभी कर्मचारी 5 मिनट का मौन रखते हैं, वो भी लंच टाइम में रखते हैं, ताकि सबको ये याद रहे कि ये घटना हुई। और जब हम साथ में मौन रखते हैं तो हम एक दूसरे से स्ट्रेंथ डिराइव करते हैं कि हाँ, इस अन्याय के खिलाफ हम लोग सब साथ में हैं। दैट इज द ओनली एक्सटेंट ऑफ प्रोटेस्ट दैट वी हैव बीन फॉलोइंग एंड विल कंटिन्यू टू फॉलो। इसके अलावा जहां तक काम करने की बात है, फाइल्स की बात है, सब कुछ चल रहा है। ऑल फाइल्स आर बीइंग मूव्ड।
कई बार होता है कि अधिकारी चूंकि एक से ज्यादा चार्ज हैंडओवर कर पा रहे हैं, अगर किसी मीटिंग में नहीं पहुंच पाते हैं तो पहले से इन्फॉर्मेशन देकर एक स्टेटस नोट भेजा जाता है कि इस मीटिंग के बारे में ये बैकग्राउंड है और जो भी डायरेक्शंस हो वो हमें राइटिंग में कम्युनिकेट कर दिए जाएं। तो इस तरह की कोई भी बात नहीं है कि कोई भी अधिकारी स्ट्राइक पर है, और इस तरह की बातें अगर कही जा रही हैं और अननेसेसरली IAS ऑफिसर्स को मेलाइन किया जा रहा है तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। कुछ और स्पेसिफिक इंस्टांसेस हैं। सिग्नेचर ब्रिज के इंस्पेक्शन के बारे में बात की गई, तो इट इज अ फैक्ट कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस हैड अकम्पनीड द ऑनरेबल CM ऑन दैट इंस्पेक्शन। इसके अलावा इंजीनियर इन चीफ PWD वहां थे, DTDC के चीफ इंजीनियर थे। उसमें सेक्रेटरी टूरिज्म इसलिए नहीं पहुंच पाई क्योंकि वो छुट्टी पर थी, और सेक्रेटरी PWD मिस्टर परिदा वॉज ऑन लीव दैट डे, ही वॉज नॉट फीलिंग वेल। लेकिन मिसेस रेणु शर्मा जो इस समय प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस हैं, वो पहले सेक्रेटरी PWD रह चुकी हैं। शी नोज द बैकग्राउंड एंड शी वॉज वेरी मच देयर फॉर दैट इंस्पेक्शन विच हैज नॉट बीन ब्रॉट आउट on record anywhere, and we are constrained to bring it on record today here in this press conference, even though we do not believe in talking these things in public. On the issue of handling dengue and chikungunya, it is being said that the IAS officers are not cooperating in controlling dengue and chikungunya. They are not attending any of the meetings. In fact, in the last several months, no meetings have been called by the concerned health minister on dengue and chikungunya. One. Secondly, Lieutenant Governor had held 2 meetings in April and May 21st, and Honorable Minister of Health and other officers also attended there. Our district magistrates and all other officers, they have been holding meetings with MCD and other civic agencies to have all kind of measures for controlling dengue and chikungunya. So it is wrong to say that we are not with the society for controlling dengue and chikungunya. We are doing our best and we are attending all the meetings that have been called so far. So it is not true. Secondly, on the issue of health again, जैसे पॉलीक्लिनिक के बारे में बताया जाता है कि मोहल्ला क्लिनिक और पॉलीक्लिनिक का काम टोटली बंद पड़ा हुआ है। EFC मेमो के डायरेक्शन के बाद एक नोट बनाया गया था PWD और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें कैबिनेट में जाने के लिए सारे डिपार्टमेंट को सर्कुलेट करने के लिए 20 मार्च को नोट भेजी गई थी। तो मंत्री महोदय ने उसमें कहा कि आपको इसको कैबिनेट में भेजने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब फाइनेंस डिपार्टमेंट की एडवाइस आई कि रूल के तहत सारे डिपार्टमेंट्स में लॉ, फाइनेंस और प्लानिंग में जाना पड़ेगा और उसको कैबिनेट में लेना पड़ेगा, तो उसके फैसले के बाद 4/4/2018 को ये सर्कुलेट किया गया है और वो शीघ्र ही कैबिनेट में लिया जाएगा। ये भी कहना गलत होगा कि पॉलीक्लिनिक या मोहल्ला क्लिनिक का कोई काम रुके पड़े हैं। अगेन अबाउट द मोहल्ला क्लिनिक के कंस्ट्रक्शन से ऑन 164 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक फंक्शन कर रहे हैं अभी, और पिछले 3 महीनों में 76 साइट्स हैव बीन हैंडेड ओवर टू PWD फॉर कंस्ट्रक्शन। Another 33 sites are ready for possession. तो जहां पर हो सकता है शीघ्र से शीघ्र IAS ऑफिसर्स और सारे ऑफिसर्स, दिल्ली सरकार के नीचे लेवल के भी ऑफिसर्स IAS ऑफिसर्स के साथ देते हैं कि दिल्ली के लिए जो कुछ अच्छा हो सकता है उसमें हाथ बढ़ाएं। तो ये कहना गलत होगा और मलाहिन करने वाली बात होगी कि IAS ऑफिसर्स दिल्ली के कोई भी हितकारी कार्यक्रम में रुकावट पैदा करते हैं या मदद नहीं करते हैं। We'll come back on questions. We'll just come back. Amjad Saab hai, he's DM. I would like him to just speak about what the work is done in field for all these policies and all these. एक बार बताएं हमसे। जैसा मैम ने बताया अभी कि एक एलिगेशन ये भी लगाया जाता है कि वी आर नॉट रिसीविंग कॉल्स ऑफ ऑनरेबल MLAs, ऑनरेबल मिनिस्टर्स, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वी हैव गॉट अ लॉन्ग लिस्ट of honorable MLAs visiting Chief Secretary's office recently. I would just read out some names. Honorable MLA Shri Adarsh Shastri ji, Jagdeep Singh ji, Alka Lambar ji, Pramila Tokas ji, Sukhbir Dalal ji, Commando Surendra Singh ji and Somnath Bharti ji और इशाक खान जी, ये इन्होंने अभी रिसेंटली चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में विजिट भी की है एंड उन्होंने जो भी उनकी ग्रीवेंस थी उन्होंने रखी CS सर के सामने एंड इट हैज बीन एडिक्वेटली रिड्रेस्ड। एंड as a field officer, I can say that we are
keep getting calls from our honorable MLAs of our constituency, our area. मैं अपने बारे में बता सकता हूँ, ऑनरेबल एमएलए सोमनाथ भारती जी हर दिन हमें कॉल करते हैं और उनका पूरा सम्मान है. जब भी कोई बात होती है वी गिव हिम ड्यू रेस्पेक्ट और उसके साथ में उनकी जो भी प्रॉब्लम होती है उसको रिड्रेस करने की पूरी कोशिश की जाती है. एंड वी आर क्वाइट हैप्पी विद, आई मीन ही इज इनफैक्ट क्वाइट हैप्पी विद द वर्क. इसके अलावा चाहे आप सौरभ भारद्वाज जी हैं, वो भी हमारे फोन करते हैं. जो भी इश्यूज होते हैं वी डिस्कस एंड वी ट्राई टू रिट्रेस. अभी हाल ही में मालवीय नगर में भी फायर एक्सीडेंट हुआ था, तो मुझे ये ऑन रिकॉर्ड बताता हूँ कि टिल 2:30 ऑनरेबल एमएलए सोमनाथ भारती जी वॉज देयर ऑन द साइट. आई माई सेल्फ वॉज देयर. आई वॉज देयर टिल 5 AM. निधि जो यहाँ पर हैं, शीज DC MCD, वो भी वहाँ साइट पे थी. तो वी आर वर्किंग डे एंड नाइट फॉर द वेलफेयर ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली पीपल. ऐसा नहीं है. एंड वी हैव utmost respect to the honorable MLA, honorable ministers. We keep getting call and we are receiving them and we are replying to each and every call. अगर कहीं कोई मीटिंग में है या कोई ऐसा अर्जेंसी है जिसमें हम कॉल उठा भी नहीं पाए हैं तो हमने वापस से उनका फोन का जवाब दिया है. इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत से काम होते हैं. राइट फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग फ्रॉम 9:30 till 2-3 PM पब्लिक हियरिंग्स चलती रहती हैं. पब्लिक हियरिंग में आपके सामने बहुत से लोग आते हैं. दिल्ली गवर्नमेंट ने टाइम भी फिक्स किया गया है जिसमें एक ऑफिसर को वहां बैठना ही बैठना है. हम लोग वहां बैठते हैं. सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जितने भी हैं, दिल्ली में 11 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, सभी अपना काम बड़ी मुस्तैदी से कर रहे हैं. किसी तरह का कोई भी इसमें लेगुना नहीं है. वी रिपोर्ट टू डिविजनल कमिश्नर एंड वी हैव गॉट सो मेनी थिंग्स टू डू इन अ डे, वेदर इट इज अ सीनियर सिटीजन हियरिंग और उसके अलावा दूसरी हियरिंग है NHM की मीटिंग, नेशनल हेल्थ मिशन की मीटिंग्स हैं जो वीक में कम से कम 3-4 मीटिंग्स होती हैं. ये सारे काम हम बिल्कुल अपनी अटमोस्ट कैपेसिटी के साथ में कर रहे हैं और किसी तरह का कोई भी इसमें कोताही नहीं बरती जा रही है. हर फ्राइडे को ऑनरेबल PS सर की मीटिंग होती है. PS सर की मीटिंग में हम उस चीज़ को ब्रीफ किया जाता है, तो सब चीज़ की मॉनिटरिंग की जा रही है. तो किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके से, वेदर इट इज IAS ऑफिसर, दास और दानिश ऑफिसर, सब लोग अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ अपना काम कर रहे हैं. जहाँ तक जैसे मैम ने बताया कि वो 5 मिनट का मौन, 5 मिनट का मौन हम सब रखते हैं. जो आपका लंच आवर्स होता है, लंच आवर में एक मौन रखा जाता है 5 मिनट का, ताकि वो चीज़ याद रहे कि यस जो हमारे सीनियर अथॉरिटी के साथ जो हुआ है वो ठीक नहीं हुआ और उस चीज़ को एटलीस्ट एक्नॉलेज किया जाए और उसके लिए कुछ करेक्टिव मेजर्स ऐसे उठाए जाएं जिससे सारे ऑफिसर्स का फेथ बने. एंड वी वांट टू वर्क, वी आर वर्किंग डे एंड नाइट. ना कोई छुट्टी देखी जाती है. जरूरी काम होता है तो सैटरडे संडे भी ऑफिस में आते हैं, ऑफिस में काम निपटाते हैं अपना. और जैसे मैम ने बताया कि काफ़ी ऑफिसर्स हैं जो ड्यूल चार्ज भी संभाल रहे हैं, तो वो सारा काम अपनी पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हैं. और जैसा मैंने बताया आपको कि सारे ऑनरेबल MLAs, ऑनरेबल मिनिस्टर्स, उनका पूरा सम्मान है. उनकी किसी भी बात को कभी भी बगैर सुने हुए कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि उनका फ़ोन कॉल रिसीव ना किया गया हो या उन्हें सही जवाब ना दिया गया हो या उनके सम्मान में कोई भी कमी रही हो. As an officer, we are bound to reply to the calls. We are bound to listen to them, and that we are doing with our utmost capacity. Do tell us, are you taking this matter forward to the CM? We'll come back. I'll just come back to your question. We'll just come back to questions. रिलीज कहता है कि आप लोग मिनिस्टर और मुख्यमंत्री के रूटीन मीटिंग में नहीं जाते, ये आपका ये प्रेस रिलीज कहता है. I'll come back to your question. Let me respond to the question. नहीं, please. अभी खत्म. मैं यंगर बैचेस से एक ऑफिसर हूँ और जब हम लोग ऑफिसर पढ़ाई कर रहे होते हैं तो सर्विस में आने के लिए बहुत एम्बिशियस होते हैं और तब लगता है कि हम लोग यहाँ आएंगे और बहुत काम करेंगे. एक वर्ड सिखाए जाते हैं एनोनिमिटी और न्यूट्रलिटी से काम करने के लिए, जिसमें हम सारे लोग, मेरे सीनियर कलीग, मेरे यंगर कलीग, सब लोग काम कर रहे हैं. बहुत पिंच हो रहा है ये बताना और यहाँ बैठ कर ये सबको प्रूव करना कि हम लोग काम कर रहे हैं. 4 महीने से my colleagues day in day out they are working hard, but today we are all sitting to prove that we are all working, so it hurts. मैं आपके थ्रू सबको यही मैसेज देना चाह रही हूँ, एक यंगर बैचेस का ऑफिसर होने के नाते, कि we don't work for any political party, we work under oath and we work whatever goes by rules and regulations. So I hope ये सारे लोग ये वाली बात समझे और ये जाने कि हम सब लोग लगातार अपने प्रयास कर रहे हैं और जो भी कर सकते हैं अपने टेन्योर में वो सब कुछ कर रहे हैं.
Can I have questions one at a time, please? How do you define a routine meeting? You have said that your people are operators are at every meeting you are taking. Kejriwal has gone to LG. Have you approached any government authority, center for that matter? Madam, when this incident happened, at that time, the entire IS Association has met the Cabinet Secretary, the Minister for DOPT, we've met the Home Minister, the NHA is our fire controlling authority. We have met everybody that we possibly could. We met the Honorable LG and we have informed them that this incident has happened. We are very anguished by this incident and we would request their intervention to create a framework where officers can work without fear and favor and they don't feel intimidated and scared by such tactics. मुख्यमंत्री और मंत्रियों के रूटीन मीटिंग में नहीं जाते, उस पर आप स्पष्टीकरण करेंगे। रूटीन मीटिंग क्या है और क्या देखिए, ऐसा है कि जितनी मीटिंग्स अटेंड की गई हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स पे हैं वो सब ऑन रिकॉर्ड है। कोई हो सकता है कि कोई मीटिंग किसी पर्टिकुलर एरिया की हो या कुछ हो, अगर उस मीटिंग को नहीं अटेंड किया गया है तो उसमें भी स्टेटस नोट भेजा गया है। Madam, regarding the meeting on pollution, I would request you to check the record. Just one day earlier, Honorable LG had held a meeting. Honorable Minister was present in that meeting. All the decisions which were taken in that meeting only. The next day, a meeting was called at an extremely short notice, and Secretary Environment, who is also holding charge of another department, could not adjust his pre-scheduled meeting to attend that meeting. मैडम, ये आपका जो प्रेस क्लिप है, मनीषा जी, मैम एक सेकंड, जो प्रेस क्लिप है आपका जिसमें आप खुद कह रहे हैं कि आप रूटीन मीटिंग में नहीं जाते, तो आप थोड़ा स्पष्ट करिए कि रूटीन मीटिंग क्या है, जिसमें आप नहीं जाते हैं। और क्या सरकार जो भी मीटिंग्स या जो भी गैदरिंग्स जहाँ पे वी डोंट फील सेफ, वी डोंट अटेंड, and routine meetings and public statutory meetings are two different things. We are attending all statutory meetings. What are you statutory meeting and how do you define it? IS conduct rule allow करता है कि आप मीटिंग सरकार का दावा सही है कि आप लोग अगर उस पर नहीं जाते हैं या कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं पावर की जहाँ पर आप डिफाइन करने के लिए कह रहे हैं, जो चीफ सेक्रेटरी के साथ वारदात हुआ 19 फरवरी को रात को 12 बजे जब चीफ सेक्रेटरी कोई मीटिंग अटेंड करने अकेले जा रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई भी समय में कोई भी मीटिंग अटेंड करने के लिए हम लोग प्रस्तुत हैं। इसके बाद ऐसे हुए हैं 2-4 जगह तो बाहर जाके पब्लिक फोरम में थ्रेट किया गया कि अफसरों को पिटाई करो। मंत्रियों के सामने, मुख्यमंत्री के सामने अगर कहा जाए कि ये अगर काम नहीं करते तो उसकी पिटाई की जाए। इसके बाद अगर मुझे कोई रात को 12 बजे अकेला बुलाए तो मैं अपने राइट टू सेल्फ डिफेंस की शायद इस्तेमाल करूंगा। रूल बुक तो अलग बात है कि मुझे डर लगता है। मुझे अगर कोई कहता है कि इसको हम जान से मार देंगे, इसके बाद आप कहेंगे कि आपको रूल कहता है कि आप आओ और अंधेरे में जाके अकेले मेरे से मिलो और 25 आदमी हम खड़े होंगे, हम नहीं आ पाएंगे। मैं मेरा जवाब दे रहा हूं, अभी का सवाल का जवाब दे रहा हूं। पहली बात है सुरक्षा और आत्मसम्मान। अगर सुरक्षा और आत्मसम्मान के लिए अगर कोई महिला जाती है, एक महिला ऑफिसर को किसी एमएलए महोदय ने थ्रेट किया जो कि पब्लिक डोमेन में है। अब वो महिला अफसर को जब हम लोगों ने कहा कि ठीक है आप जाके किसी मीटिंग में जाइए, वो कहते हैं मुझे सुरक्षा दीजिए। क्या रूल जो भी है उसके बाद हम कहेंगे कि जहां पर आपको जान को खतरा हो सकती है। किसी ने आज तक हमको कहा कि आपकी आत्मसम्मान की देखभाल की जाएगी, आपकी जान की कोई खतरा नहीं होगी। आप मैं जाता हूं मीटिंग्स में, आज तक मैंने कोई मीटिंग जाने से मना नहीं किया है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो सारे मीटिंग खत्म कर सकता हूं, उसके बाद दोबारा सोचे। लेकिन जब भी कोई मीटिंग होता है, मेरे साथ मेरे पूरे स्टाफ जाते हैं। मेरे को अगर अकेले कल को कोई बुलाएगा मीटिंग में, 15 लोग वहां पर होंगे, तो इस माहौल में शायद मैं नहीं जा पाऊंगा। चाहे उसके बाद सिक्योरिटी पर्सनल के साथ जाने दें तभी। You are all, I would like to just answer this question about security person. You all work in some office or the other, all of you.
Would you like to go into your office with security personnel? Would you like to meet your boss whom you report to with security personnel? Do you think this question even makes sense? You just imagine. But we don't feel threatened at all. Yes, but we are feeling threatened. That's the point I'm making. Yes, we are feeling threatened. Yes, we do not feel safe. Yes, in any situation we do not feel safe. Anywhere if we are called and we are threatened and we are shouted at and threats are made, physical harm के threats किए जाते हैं, of course we feel threatened. Ma'am, for the public interest, would you like to have security personnel? Inside the room there is no security. The security is outside at the gate. The security is meant to be from. We are getting security from outsiders. We are getting security from intruders. We do not expect to be attacked by our own bosses. This is not the way that works. It is not hypothetical when it has happened to the chief secretary. ऐसा है, देखिए से आपका क्या मतलब है? एक इंसिडेंट हुआ. This is not the only incident when officers have been threatened. Mr. Sadangi will tell you about when he was threatened. I have been threatened. There is a statement that मैं वर्षा जोशी का सर फुड़वा दूंगा. This statement is there. Of course, we have all been threatened. Ma'am, I'm saying that under Anshu Prakash case, there's already a case going on in the court, and the chief minister. It is not in the court as yet. There's a police investigation going on, and Mr. Anshu Prakash's case, as Varsha just mentioned, is not the only case. All of us have had instances of verbal assault, physical assault, or memo, one or the other. And in this situation, whether you carry security with you or otherwise, you feel threatened. I mean, it's a question. I hope that none of you ever have to go through a situation where you feel threatened all the time कि कौन से मंच पे आपको कब क्या कह दिया जाएगा, कौन सा मेमो आपके पास आ जाएगा, कौन कब आपके साथ हाथापाई पर उतर आएगा. If people can misbehave with the chief secretary of the state, who incidentally has a personal security officer at all times, but he does not accompany him to the meeting rooms. He is only till outside the meeting room. Meetings are confidential, sacrosanct things. Do you think I would be happy carrying a policeman with me inside to the meeting hall? I think even that idea is preposterous. We have no confidence and nobody has taken any action to build our trust and confidence. That is our first and foremost grievance, that after this incident also, nobody reached out to us, nobody took any measures. In fact, at public forums, MLAs have said कि अफसरों को तो पीटना ही चाहिए, and Honorable CM who spoke after that particular MLA did not even rebuke him, or he was smiling. He did not even mention what the MLA had said to him prior. So, what signals do we get out of it? We are attending a statutory meeting. As per the transaction of business rules, only cabinet meetings are mentioned. All other meetings are, I agree, meetings are important for work, but we will not attend them at the cost of our personal security and dignity. अगर आप मुझे इससे particular meeting के instances देंगे, तो I will be able to refute better. Let us not make generalized statements. I have the list from both my departments of all the meetings that I have been attending. All the meetings are here. The idea that we are not attending meetings and we are on strike, it is complete lies. What is the way out? We are not on strike. We have been attending meetings. As far as public interest is concerned, I can tell you that as far as officers are concerned, we are working overtime because this is an abnormal situation. आप देखिए power demand 6900 megawatt जा रही है. You just imagine how much strain there is in the power sector. But we have to work overtime to make sure कि outages नहीं होती हैं. हम एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं कि एबनॉर्मल सिचुएशन है तो हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी so that public does not suffer. We are going out of their way for that. And from the beginning, as Manisha said, the association has had one request to Honorable CM. Please assure our security. Please make us feel secure. Please let us not feel that wherever we go, we will be threatened and beaten up. I'm requesting all of you, tell me, is this an abnormal demand? Is it an inhuman demand? It's not even a demand, it's a request. It's a request, let us feel safe. ये है ABP News,
आपको रखे आगे।